So if somebody is bent upon attacking you or encroaching your sovereign boundaries, so deceit is the first thing they will do. And we were defeated. Yes, absolutely, we were defeated. But we were not defeated. We were, no way, no, absolutely. In Absolutely fact, not. they went back home licking their wounds actually. Yeah. So that We all remember those visuals which we saw on TV and all. You were lucky you saw the war on TV, because I never had the opportunity to see it. I'm not willing to repeat it, yes, but given a chance, I would surely like to contribute whenever there's a call of the nation. This is one thing which is common between all veterans. They all say one thing, जरूरत पड़ने पे हम अपने देश के लिए दोबारा से तैयार. Absolutely. And यही वो फीलिंग है जिस कारण हमारा देश, हमारी फौज इतनी ग्रेट है. सर सीरियस बातें बहुत हो गई, अब थोड़ी हल्की फुल्की बातें करते हैं. आपके साथ एक गेम खेलते हैं, रैपिड फायर. I'm a game for any game. बड़ा सिंपल सर, एक लफ्ज मैं बोलूंगा, जो पहली चीज पहला लफ्ज आपके दिमाग में आए बिना टाइम लीजिए साथ के साथ बोल दीजिएगा. रेडी? Right. चलो. इंडिया. Army. पॉलिटिक्स. Not army. सोशल मीडिया. It is too much of anything. अर्नब गोस्वामी. Good, I like him. इंडियन आर्मी. Indian Army is my religion. टुडेज मीडिया. Not good. सोशल मीडिया. To be used cautiously. अर्नब गोस्वामी. Nothing to say. रवीश कुमार. Ravish Kumar is creditable. पॉलिटिक्स. Politics is division. अर्नब गोस्वामी. Loudmouth. रवीश. Another one. लव. Passion. लव. लव को मैं नहीं जानता. लव. Kush. Oh, अच्छा, this love. I thought it is a name of somebody. No. लव. Love, romance. It's good. रोमांस. A romance is something like coronavirus, I would say. Once you get it, you know it. एंड सेक्स. Mandatory. थैंक यू सर, दैट वाज अमेजिंग. टू जेन्युइन, टू ट्रू एंड अप टू द मार्क. अच्छा. You only want कि जोड़ा मेरा एम है, इसलिए जो मैंने टास्क दिता गया वो ਅਸੀਂ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ. When the Kargil war broke out in May 1999, that time I was already posted and commanding a unit of Air Force which was in an isolated and high altitude area. By May end, the snow is normally cleared and the roads open up in that particular location. And on 14th of May, since that was a high altitude and no family station, my family was living in Delhi. All right. That was my last posting station. My family joined me at my location on 14th May itself. The same evening on 14th May, that is the first time when the balloon really went up, I got a call from Air Officer Commanding J&K from Udhampur, and he told me that I should pack my baggage, get ready, and tomorrow morning I'm moving. All right. Okay, fine. And on 15th morning I was ready to move at 5 o'clock with my baggage. Location, destination was not known to me. Where I was moving, the mobilization had already started taking place. I was picked up by a chopper, brought to Udhampur, and from there in IL-76 I went to Leh. From Leh another Mi-17 was there and he took me to a place called Thois. Thois is an airfield which is located between Kargil, Siachen and Partapur. Partapur, as you know, is an army base camp for Siachen Glacier. Right. And this is the airfield which is sustaining entire air logistics efforts of that region. When I reached Thois finally, after traveling in different types of aircraft, I went to base commander and got my briefing. So that is the time the situation became very clear to us, okay, what is the scenario and what we are supposed to do there. Everybody was very, very highly charged because this war was taking place after 71. This was the first war which was ever taking place, and everybody was sort of raring to go, have a go at it in the war. I don't remember if anybody slept more than 2 hours or 3 hours out of 24 hours. All right. Because night time you could hardly sleep. All the time you were anticipating a paradrop by the army, Pakistani army. So it was a matter of trust, belief or faith, which was breached by General Pervez Musharraf. Everybody was shocked. You see, somewhere 3rd, 4th May को हमारी
आर्मी को पता लगता है किसी एक्स आर्मी मोहम्मद यूसुफ से कि भी हमने ये हाइट के ऊपर जहाँ आपकी पोस्ट है वहाँ हमने कुछ आर्मी पर्सनल देखे, एंड क्योंकि अभी इस टाइम के ऊपर इंडियन आर्मी वहाँ नहीं रहती, तो इसका मतलब है कि भी वो पाकिस्तानी हो सकते हैं। सर्दियों के अंदर इट इज़ अनरिटन लॉ फ्रॉम बोथ साइड्स कि सर्दियों के अंदर वो जो ऊपर पोस्ट है वो पोस्ट, क्योंकि इतनी सर्दी हो जाती है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टे पुट देयर। सो दोनों पाकिस्तान एंड इंडियन आर्मी वो पीछे अपने बेस लाइन में वापस आ जाते हैं। इसी तरह इस बार भी वही हुआ, बट पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ ही हैड अ डिफरेंट प्लान्स। ही प्लान दिस मूव कि भी जितनी हमारी अप्रॉक्सीमेटली 130 पोस्ट खाली थी, उन्होंने मुजाहिदीन के साथ अपनी रेगुलर फौज को भेज के ये ऑक्यूपाई कर ली, ताकि वो ये जो रोड कारगिल से रोड जाती है उस रोड को कवर करे एंड उस रोड को अपनी ऑब्जर्वेशन में ले ले, ताकि वो जब दिल चाहता है उसका वो उसको डिसरप्ट कर सके, हमारी सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर सके। तो ये वार तो हमने जीतना था, बट वार जीतने के बाद जो खुशी एक वेटरन को मिलती है, बट यस दिल के अंदर एक रेग्रेट आता है कि भी 98 में मैंने फ़ौज छोड़ी एंड 99 के अंदर ये वार हुआ, तो दिल में यस आया कि भी काश कि मैं भी वहाँ होता, उसके अंदर हम भी पार्टिसिपेट कर दे एंड हमारी भी कंट्रीब्यूशन देश को होती। मेरे लिए मैं अगर कहूँ तो मेरी पलटन के 2 जवान शहीद हुए, उनका अफसोस भी रहा, लेकिन साथ ही गर्व ये भी रहा हमारी पलटन जो एक न्यू रेजिंग थी 1985 की, पहली बार हमने किसी युद्ध में हिस्सा लिया, और आज की तारीख में हमारी पलटन को कारगिल गनर के नाम से बुलाया जाता है। क्या बात है, ये कारगिल वी राइटेड 286 फील्ड रेजिमेंट कारगिल। हमारी रेजिमेंट 286 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी रेजिमेंट है। मीडियम गन्स थी उनके पास 130 mm उस समय। सितंबर 98 के आसपास हमारी रेजिमेंट कारगिल में पहुंची थी। जून 99 में जब ये युद्ध आरंभ हुआ, पाकिस्तानी से इन्वेजन करी, हमारी पलटन को इन्होंने डिप्लॉय करा उस पूरे सेक्टर में, बिकॉज 130 mm गन्स की जो जनरली रेंज है वो 32 किलोमीटर 28 से 32 किलोमीटर जाती है। ओके। लेकिन पहाड़ी इलाकों में इसकी रेंज 36 किलोमीटर तक की अचीव हो जाती है। यानी आप 36 किलोमीटर पीछे से अपना गोला, जो तकरीबन एक गोला 32 से 34 किलो का होता है, अच्छा, वो गोला आप 36 किलोमीटर दूर दुश्मन के बंकर या दुश्मन को तबाह करने में सक्षम रहते हैं आप। क्या बात है। हमारी पलटन डिप्लॉयड थी वहाँ पर ऑलरेडी। 8 OPs यानी ऑब्जर्वेशन पोस्ट, हर ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर एक कैप्टन या मेजर रैंक का अधिकारी जनरली रहता है। ये फॉरवर्ड एरिया में इन्फेंट्री बटालियन के साथ जनरली रहते हैं। वहाँ से वो देखते हैं कि दुश्मन कहाँ पर है। वो पूरी इन्फॉर्मेशन पीछे गन पोस्ट पर, जहाँ पे गन्स तैनात होती हैं, वहाँ पर भेजी जाती है। वहाँ पे टारगेट का एनालाइज करके उसी हिसाब से गन को फायर किया जाता है। तो बहुत सक्सेसफुली हमारी पलटन ने 286 मीडियम रेजिमेंट ने अलॉन्ग विद इन्फेंट्री एंड अदर पीपल बहुत अच्छे से पूरा युद्ध लड़ा है इन्होंने। 50 दिन के पूरे युद्ध में हमारी पलटन के भी 2 सिपाही वीर गति को प्राप्त हुए। अच्छा जी। उनका अफसोस भी रहा, लेकिन साथ ही गर्व ये भी रहा हमारी पलटन जो एक न्यू रेजिंग थी 1985 की, पहली बार हमने किसी युद्ध में हिस्सा लिया, और उस युद्ध में हिस्सा लेने के उपरांत सब्सिक्वेंटली हमारी पलटन को 2 सेना मेडल गैलेंट्री, 5 मेंशन एंड डिस्पैच और 6 आर्मी कमांडर कमेंडेशन कार्ड्स हमारे पलटन को मिले, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी पलटन के लिए थी। और आज की तारीख में हमारी पलटन को कारगिल गनर के नाम से बुलाया जाता है। क्या बात है, ये कारगिल वी राइटेड 286 फील्ड रेजिमेंट कारगिल।
कारगिल गनर्स। कारगिल गनर्स के नाम से हमारी पलटन को बुलाया जाता। उस समय मन में बहुत था कि काश मैं भी आज अपनी पलटन का हिस्सा होता, लेकिन चूंकि मेडिकल ग्राउंड्स पर मेरी उस समय हालत ठीक नहीं थी, सो आई वॉज बेडरिडन, रॉड्स वर इंसर्टेड इन माई नी, सो आई वॉज हेल्पलेस। बट मन में एक बहुत टीस उठती थी कि मैं आज के समय में अपनी रेजिमेंट के, अपनी बटालियन के साथ में क्यों नहीं हूँ। हम लोग यही सोचते रह गए कि शायद वो टेररिस्ट हैं, तो टेररिस्ट आए हैं तो 10, 12 या 20 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे। और यही सोचकर हमारी ब्रिगेड ने पहले एक बटालियन भेजी अटैक करने के लिए, लेकिन पता चला कि वहाँ से इतना ज़्यादा फायर आ रहा है कि आधी बटालियन तो ख़त्म हो गई। नागा बटालियन थी वो वापस, उसको वापस आना पड़ा। और ये हमारी एक मिस्टेक थी कि हमें पता ही नहीं चला कि वहाँ पर स्ट्रेंथ कितनी है। मैं आपको ये बता दूं कि कारगिल वॉर जो हुआ 1999 में हुआ, आपको भी पता है, लेकिन मैं वहाँ 1991 में था, उससे 9 साल पहले। लेकिन जब ये वॉर चालू हुई थी तो हमें पता चल रहा था कि वहाँ क्या हो रहा होगा। और जब ये इसकी विक्ट्री हो गई उसके बाद तो ऑब्वियस है कि सबको इसकी काफ़ी खुशी हुई होगी, लेकिन हमें सिर्फ इस बात का ही गम होता था कि हमारे बहुत सारे जवान और ऑफिसर्स अपनी शहादत दे बैठे थे इसमें, क्योंकि हमें इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी थी कि उधर कितने फोर्सेस थे। बाकी तो जब हमने इसके विजय पाई ली थी तो ज़रूर हमें अच्छा लगना था और हमने भी काफ़ी इसकी खुशी मनाई थी। सर दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी। सारी स्टोरी जो थी आपके ज़ुबानी हमने जानी कारगिल के बारे में, लेकिन जब वो एक फाइनल मोमेंट, जब वो डिक्लेरेशन हुई दैट इंडिया ने कारगिल वापस जीत लिया है, जब ये वॉर की विक्ट्री हमारी झोली में आई, आप कहाँ थे और क्या फीलिंग्स थी आपकी? आपने किस तरीके से वो विक्ट्री को सेलिब्रेट किया? कुछ याद आपको उस बारे में? हाँ, I very vividly remember that. I was still at Thois when the news of the victory came and Pakistan has withdrawn that time. Everybody, I don't think everybody had the similar sort of feelings. Everybody had his own, emotions which were pent up, bottled inside, and they came out. And if we think that people must have rejoiced and celebrated and, drank or something, no, nothing like that. For me personally, if you ask me, in my particular case, after doing the day's job, I had not spoken to my family for the last 2 months because firstly, there was no communication available. Secondly, we were not permitted. So I walked all the way 13 kilometers up and 30 kilometers down to Partapur to talk to my family for about 5 minutes. Okay, we had a sat phone there and I spoke to my family after 2 months. Until then, they were not aware we were alive. I can was- actually visualize that feeling. I can visualize that scene. एक जवान या एक ऑफिसर जो 2 महीने से अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहा, हमारे लिए, हमारे देश की सीमा को बचाने के लड़ रहा है, और जब वो 5 मिनट की फ़ोन कॉल मिली होगी उनको, वो कैसी होगी? सो दैट इज़ हाउ यू सेलिब्रेटेड द विक्ट्री। That is how. सर सीरियस बातें बहुत हो गई, अब थोड़ी हल्की फुल्की बातें करते हैं। आपके साथ एक गेम खेलते हैं, रैपिड फायर। I'm a game for any game. बड़ा सिंपल सर, एक लफ्ज़ मैं बोलूँगा, जो पहली चीज़, पहला लफ्ज़ आपके दिमाग में है, बिना टाइम लीजिए साथ के साथ बोल दीजिएगा। रेडी? राइट। चलो। इंडिया। आर्मी। पॉलिटिक्स। नॉट आर्मी। सोशल मीडिया। It is too much of anything. अर्नब गोस्वामी। Good, I like him. इंडियन आर्मी। Indian Army is my religion. टुडेज मीडिया। Not good. सोशल मीडिया। To be used cautiously. अर्नब गोस्वामी। Nothing to say. रवीश कुमार। Ravish Kumar is creditable. पॉलिटिक्स। Politics is division. अर्नब गोस्वामी। Loudmouth. रवीश। Another one. लव। पैशन। लव। लव को मैं नहीं जानता। लव। Kush. Oh, अच्छा, this love. I thought it is a name of somebody, no? लव। Love romance, yeah, it's good.
Romance. Romance is something like coronavirus, I would say. Once you get it, you know it. And sex. Mandatory. Thank you, sir. That was amazing. Too genuine, too true, and up to the mark. अच्छा. ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था. These are called collar tags. Okay. Or dog tags also. It has got your service number, Okay. your blood group, and your religion. So now this is very interesting. See, एक dog tag या collar tag जो इसे कहते हैं, it has this service number and then the blood group कि अगर किसी को कोई चोट लग जाए किसी ऑपरेशन में तो किस ब्लड ग्रुप के हैं वो. एंड थर्ड इज द रिलीजन, जैसे इस पे लिखा है हिंदू. वो इसलिए कि अगर आप किसी लड़ाई में हैं और आप शहीदी पा गए हैं तो एटलीस्ट आपको जो आपके बरियल राइट्स है वो मिले. दिस इज सो इंटरेस्टिंग सर. और क्या सर आपके पास? And these are the two medals which were given to those people who were in the operations area. This particular medal is Op Vijay medal, and it was given to Army, Air Force and Naval personnel, those who were involved in the operations, that is Kargil operations. This is Op Vijay Star. This was given to those people who were actively in the combat zone, and only to Air Force and Army, because Navy was not there in that combat zone at all. And so this must be your, This is my cap. this is your cap. Can I just have a look at it Yes, for a yes. second? Thank you so much. So this is the official cap that veteran wing commander A.K. Gupta used to wear while he was in service. This means so much to you. Thank you. Yes, it does. It does. Thank you, sir. Thank you so much.